नमस्कार सबको के हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड सभी को नमस्ते। पहले मैं बंगाली में ये एक्सप्लेन करूंगी, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश में। और সবার আগে আমি বলতে চাই যে শুভ বিজয়া দশমীর অনেক অনেক শুভেচ্ছা। এই বিজয়া দশমী সমস্ত রকম আমাদের মনের গ্লানি, শরীরের অসুস্থতা, সব ধরনের বাধা বিপত্তিকে কাটিয়ে নিয়ে গিয়ে নতুন আশার আলো, নতুন নতুন সুযোগ সুবিধা আমাদের জন্য নিয়ে আসুক। আর हैप्पी दशहरा सभी को। ये दशहरा आप सभी लोगों के जिंदगी में बहुत सारा खुशियाँ, बहुत सारा सक्सेस, बहुत सारा प्यार, ढेर सारा अपॉर्चुनिटीज लेकर आए, ताकि अपकमिंग आने वाले जो टाइम है वो हमारी जिंदगी में बहुत अच्छे और बेहतरीन हो। शुभ विजया एंड हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। সো আজকে আমার ভিডিওর যে টাইটেল এবং থাম্বনেইল থাকবে, অবশ্যই একটা কাট অফের বিষয় তো থাকবে, তার পাশাপাশি যে বিষয় থাকছে যে হচ্ছে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ কথা আমি এখানে বলবো। বলিনি হিন্দিতে বলে, তারপর ইংলিশে বলে আমি ভিডিওটাকে এন্ড করছি। অবশ্যই যেটা লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু একদম ভুলবেন না। এসবি লিটারেচারকে প্লিজ প্রচুর পরিমাণে লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করে দিন, যাতে করে পরবর্তী আপডেটস, পরবর্তী বিষয়বস্তু সম্পর্কে আপনারা জানতে পারেন, তাড়াতাড়ি আপডেটটা পেয়ে যান, নোটিফিকেশন। বিষয় হচ্ছে যে এনটিএ কি করছে বা করছেন না আমরা সত্যিই জানি না। কারণ হচ্ছে এই 2024-এর পরীক্ষাটা যখন জুনে হলো, সেটা এই ক্যান্সেল হয়ে গেল। তারপর পরীক্ষা রিনেট হলো। তারপর অবশ্যই এত বড় একটা পরীক্ষা কন্ডাক্ট করাচ্ছেন, টাইম লাগবে, সময় লাগবে সঠিকভাবে কাজ করতে, খুবই ঠিক, একদম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, খুবই একদম ঠিকঠাক কথা এটা। কিন্তু তারপর যখন আমরা এটা জানি, এরকমটাই হয়ে এসছে। এনটি আসার পর থেকেও আমরা দেখতে পাচ্ছি, যেদিন আমরা ফাইনাল আনসার কি পেয়ে যাই, সেই দিনই ফাইনাল আনসার কি পাওয়ার কয়েক ঘন্টার মধ্যে আমাদের রেজাল্ট চলে আসে। এইবার কি হয়েছে আমরা সত্যিই জানি না। তো কেন এনটি এরকম করছে আমি জানি না। 2024-এ একটা কথা আমাদের বলতেই হচ্ছে, কোথাও না কোথাও ওনারা সিস্টেমের মধ্যে কিছু না কিছু, মানে 23-20 কোভিড-19 সিচুয়েশন হয়েছিল, সেটা কেউ চায়নি, কেউ এরকম সিচুয়েশন কারোর জন্যই কামনা করে না। আনএক্সপেক্টেডলি এসেছিল, আমরা প্রত্যেকে সাফার করেছি, তবু ওনারা সমস্ত কিছু রেসপন্সিবিলিটি, সমস্ত কিছু রুলস রেগুলেশনসকে মেনটেন করে ওনারা 23 সালে 3টে এক্সাম নিয়েছেন। তার জন্য ওনাদেরকে অবশ্যই সাধুবাদ জানানো এবং ধন্যবাদ জানানো আমাদের মানুষ হিসেবে, ক্যান্ডিডেট হিসেবে কর্তব্য। কিন্তু 24-এ ওনারা এক্সাম জুনে নিলেন, তারপর ক্যান্সেল করে রিডেটলেন, ঠিক আছে। ওনারা, আমার মতে ওনারা টাইম নেই, কিন্তু যখন বিষয়টাকে নিয়ে আসবেন তখন ঠিকঠাক যেন সেটা হয়, সেটাতে জন্য স্টুডেন্টদের বা বাকি যারা আছে তাদের জন্য একটা কোনো কি মানসিকভাবে তারা যেন হ্যারাস না হয়, বা তারা যেন ভেঙে না পড়ে, দুর্বল হয়ে না পড়ে। কিন্তু ওনারা কি করছেন আমি সত্যি জানি না। কারণ প্রথমে যখন আনসার কি এলো, এইবারও একটা ওরকম আমরা শুনতে পারছিলাম, সত্য মিথ্যা আমি জানি না, যে আনসার কিটা ফেক ছিল বা ঠিকঠাক ছিল না। তো এরকম যখন একটা বিষয় হয়, তখন স্টুডেন্টের অটোমেটিক্যালি মনের মধ্যে একটা নেগেটিভ প্রভাব পড়ে, একটা ভীষণ রকম একটা প্রেশার। একে তো রেজাল্ট আসবে, তার অপেক্ষায় তারা চাতকের মতো বসে আছে কখন না রেজাল্ট আসবে। তার উপর আবার এরকম একটা মানে হচ্ছে ফাইনাল আনসার কি দেওয়ার পর এরকম খবর যদি সাথে সাথে পাওয়া যায়। আবার অনেকে আছেন যারা ভিডিও বানান স্টুডেন্টদেরকে আরও বিচলিত করার জন্য, সেটাও একদম ঠিক নয়, আমি জানি না। যাই হোক, আর এখন আমরা অবশ্যই আশা তো রাখতেই পারি, এবং আশা এক্সপেক্ট ছাড়া আমরা কি বা করতে পারি, তাই না? যে আজকে রাত্রে 12টার পর আসুক, নয় আগামীকাল আসুক, রেজাল্ট নয় পরশু আসুক, কাল আসুক, পরশু আসুক, যে কোনো মুহূর্তে রেজাল্ট কিন্তু এসে যেতে পারে। আর তারপর তার সাথে সাথে আমরা কাট অফ জানতে পারবো। আর আমার কাট অফ নিয়ে, কাট অফ রিলেটেড কোনো ভিডিও বানানোর কোনো ইচ্ছে আমি আগে থেকেই বলে আসছি। আমার ভিডিওগুলো তোমরা বা আপনারা যদি দেখে থাকেন, সিরিয়াল অনুযায়ী যদি দেখে থাকেন, এক্সপেক্টেড কাট অফ একটা বলার পর আমি পরবর্তীতেই বলেছি হিন্দি বাংলায়, যে সেটা যদি কোনো কারণে ঠিক হয় না হয় আমার উপর খুব, তবে এটা এক্সপেক্টেড, ইট ইজ নট ফিক্সড, ইট ইজ নট ফাইনাল, ইট ইজ নট গ্যারান্টিড নিউজ। আই অলওয়েজ টোল্ড দ্যাট, ওকে? এরকম কোনো বিষয় নয় যে আমি একদম যেটা বলে দিয়েছি সেটা একদম পাথর কি লকির এবং ওটাই ঠিক হবে, এরকম কিন্তু নয়। তো যাই হোক, তারপরে আমাকে যদি আবার বলা হয় যে ফাইনাল আনসার কি আসার পর হোয়াট ইজ ইউর ওপিনিয়ন অর হোয়াট ইজ ইউর আইডিয়া অর কনসেপ্ট অ্যাবাউট expected cut off again after final answer ki release, then I would like
like to say that I am not going to change my opinion, because I already told that that is already published expected cut of video. I want to stick with it, and I think this will gonna happen. If not, then I want to say sorry in advance, and if it's yes, it's happened, or it's exact same when NTA will publish their results and cutoff. If their cutoff and my expected cutoff are same, then I can say yes, I have little more, I have a little bit of idea about this expectation. Maybe that's why no, correct, nothing. Otherwise I have nothing to say. Okay, that's it. So again, I would like to recall or remind to all of you, that is, again, I would like to say a shift 1 general your or general category and reserved category 58% for net, and shift 2 56 for net, and JRF 66 to 68 for shift 1, and shift 2 64 to 66 for JRF, and EWS 56 for only net, shift 1, shift 2 54 for only net, and 64 for shift 1 JRF, and 62 for shift 2 JRF. OBC category 52 to 54% for only net, 50 to 52% for shift 2 only net. Next 61 for the JRF for shift 1, and 59 for JRF for shift 2, and AC 49 to 50% for shift 1 for only net, and 47 to 48% for shift 2 for only net, and for JRF shift 1 58% AC category, and 56% for shift 2 is for AC category. Okay, 56%. Then ST category 47 to 48 for only net, shift 1 45 to 46% in shift 2 for only net, and 56% for JRF shift 1, and 54% for JRF shift 2, and others. You can see it from websites or from Google. You can search it on Google also. Okay, so I would like to stick to it with my previous cutoff. I don't want to change my idea or my expectation or assumption from this. Okay, now I'm gonna telling you in Hindi. आप लोगों को मुझे ये बोलनी है, पहले तो क्या है कि एनटीए जब से ये एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं 2018 के दिसंबर से, हम लोग देख रहे हैं कोविड-19 एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन था. कोई भी इंसान, कोई भी एनिमल, कोई भी अगर कुछ है कि यूनिवर्स में नहीं चाहेंगे कि ऐसी महामारी ऐसी कुछ आए आगे. तो फिर कोविड-19 में हम सभी लोगों ने सफ़र की. उसकी वजह से 2023 में 2023 में एनटीए ने 3 एग्जाम एक साल में लेकर उन लोगों ने अपना बेहतरीन काम दिखा दिया, सभी रूल्स रेगुलेशंस को ठीक ठाक मानते हुए. फिर 2000 कुछ हुआ कि कोविड-19 के वजह से डेट ज़्यादा चेंज होने लगे. अभी एक आज बोल रहे हैं, फिर 7 दिन 1 महीने बाद बोल रहे हैं, मतलब कि एग्ज़ाम डिले. वो लोग भी तो अपने इच्छा से डिले नहीं कर रहे थे. वहाँ पे एक वजह थे कि कोविड-19 की सिचुएशन थे, वहाँ पे लोगों के लिए ही उन लोगों को सोचना पड़ा. लेकिन 2024 में 2024 में क्या हो गया कि जून में एग्जाम करवाया, फिर कैंसिल करवाया. लोगों कैंडिडेट ने उनके साथ उनके पेरेंट्स, उनके फैमिली बहुत ज़्यादा सफ़र हुए. इस यहाँ पे सिर्फ मनी के मैटर नहीं है, फिजिकल, इमोशनल, सभी हेल्थ की इश्यूज़ के बात है. मतलब कि जो इस एग्ज़ाम में जो कैंडिडेट जाते हैं एग्ज़ाम में बैठने के लिए, उन लोगों का पेरेंट्स ज़्यादातर हम एज्यूम कर सकते हैं कि मिनिमम 50-40 अबव 50-40 एजेस हैं. तो उन लोगों का भी एक हेल्थ पे एक जर्नी होते हैं. वो लोग भी कष्ट करके अपने बच्चों के साथ जाते हैं. तो ऐसे एग्ज़ाम लेकर फिर इसको कैंसिल कर दिया. ठीक है, फिर आगे नेट उन लोगों ने फिर वो एग्ज़ाम लेने के लिए सोचा, फिर उन्होंने एग्ज़ाम लिए. फिर ऐसा क्या, मतलब मुझे ये बोलना है कि मेरी ओपिनियन ये है कि
वो उन लोगों को अगर टाइम चाहिए तो टाइम ले, ज़्यादा से ज़्यादा ले, लेकिन जब काम करे तब कोई गलती नहीं होनी चाहिए और तब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। बच्चों लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ते हैं, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं। सभी बच्चों का, सभी इंसान का जो समझने की, अपने आप को समझाने की, धैर्य रखने की एक नहीं होते हैं। ये जो फिर उसके उन लोगों के काम के साथ साथ ये जो वीडियो मेकर्स होते हैं, मतलब यूट्यूब पे या फिर और भी ऑनलाइन सोशल मीडिया पे जो फेक न्यूज़ लाते हैं, उसके बाद ये वो कभी कभी सही भी होता है, कभी कभी फेक भी होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स फेक होते हैं ऑनलाइन, ये सब इंटरनेट में। तो ये जो फाइनल आंसर की आ गए हैं, हम लोगों को आज तक ये पता था और ये होते आ रहे हैं कि फाइनल आंसर के आने के कुछ घंटे बाद ही रिजल्ट आता है, कुछ ज़्यादा देर नहीं होते। लेकिन इस बार थोड़ा देर कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो रिजल्ट तो एनटीए चाहे तो कभी भी रिजल्ट निकल सकते हैं और हम भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज रात को ही रिजल्ट आ जाए, काल को आ जाए, परसों को आ जाए, आने का तो कभी भी हो सकते हैं। लेकिन क्या करें कि ये जो फेक न्यूज़ होते हैं और ये आंसर के आने के बाद भी एक सही है या र्यूमर्स है मुझे नहीं पता, ये फैला है कि ये फाइनल आंसर की भी कुछ फेक तरह के तरीके से कुछ था, ऐसा कुछ सुनने को दिखने को मिले। लेकिन ये सारी चीज़ों से जो लोग मैच्योर है, एज के हो या फिर अपने समझने के थ्रू जो कंसेप्ट, उन लोगों का जो मैच्योरिटी होते हैं वो समझ सकते हैं। लेकिन जो बच्चे होते हैं, सभी लोगों की एज सेम नहीं है, समझने की लेवल भी सेम नहीं है, वो लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। उन लोगों के इम्पैक्ट माइंड में, फिजिकल हेल्थ में, इमोशनल हेल्थ में पड़ते हैं। तो फिर क्या है कि ये अगर आप देखेंगे, मेरी तो एक बिल्कुल नई चैनल है और ज़्यादातर पुराने चैनल, एक रिनाउंड जो चैनल है, उनके नीचे अगर आप जाएंगे तो कमेंट में देखेंगे हज़ारों लाखों कमेंट है जहाँ पे बच्चों ने पूछा कि मेरी इतनी है, मेरी एनी चांस, मैं क्या हो सकता है, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, ये बच्चों में होना कॉमन है। तो हम लोगों को ऐसे फेक न्यूज़ नहीं फैलाना चाहिए। और आप लोग अगर मेरी वीडियो देखेंगे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकालने के बाद ही तुरंत ही मैंने एक और वीडियो बनाई कि अगर ये कट ऑफ सेम टू सेम हुए तो भी आप लोगों को मुझे कोई ऐसा मानना नहीं है कि मैं जो बोलती हूँ सच है, और अगर गलत हुए तो भी मेरे ऊपर खुद मत होना, मेरे ऊपर गुस्सा मत करना, खुद के ऊपर भी गुस्सा मत करना। ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो हम आशाएं तो बहुत कुछ जिंदगी में करते हैं, क्या सब कुछ अकॉर्डिंगली होते हैं? क्या कभी कभी होते हैं, कभी कभी नहीं होते हैं, कभी कभी उससे ज़्यादा भी होते हैं ना। तो मेरी वीडियो अगर आप देखेंगे तो मैंने जो कहा वही, और मुझे एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या, मुझे ये रिजल्ट वगैरह ये सारी चीज़ों के बारे में मुझे वीडियो बनाने की कोई इंटरेस्ट ही नहीं थी, दिलचस्पी नहीं थी। आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो आज मैं फिर अगर मुझे कहा जाए कि और भी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बातें करनी थी, मतलब मैंने ड्रॉप क्वेश्चंस के बारे में बोली, फिर मैंने जो बोनस मार्क्स होता है उसके बारे में भी बोले, फिर ग्रेस मार्क्स के बारे में भी बोले, कुछ मतलब थोड़ी बहुत सेम बात ही होते हैं और उसके बारे में भी बोले। फिर ये जो परसेंटाइल में आता है उसके एक फॉर्मूला, वो भी मुझे भी वो परसेंटाइल ज़्यादा मतलब एकदम एक्सपर्ट नहीं हूँ, फिर भी मुझे जो आइडिया है उसके अकॉर्डिंग मैंने वो फॉर्मूला भी आप लोगों से शेयर किया कि जो कैंडिडेट एकदम हाईएस्ट स्कोर लाएंगे जिस भी सब्जेक्ट में, उनके मार्क्स एंड अपियरिंग जो जितने कैंडिडेट ने एग्जाम में बैठे उन लोगों के नंबर भी हमें चाहिए वो कैलकुलेशन करने में। ओके, फिर कभी कभी तो परसेंटेज में लाते हैं, ज़्यादातर परसेंटाइल में हम देखते हैं इंडिया आने के बाद। तो फिर कभी कभी परसेंटाइल, बट परसेंटाइल जब आते हैं तो हमें समझने में डिफ़िकल्टी होते हैं। फिर क्या है कि ड्रॉप क्वेश्चंस, इस बार ड्रॉप क्वेश्चंस मुझे नहीं पता, मुझे किसी से बात अभी तक नहीं हुई कि मतलब इस बार इंग्लिश में, लेकिन अदर सब्जेक्ट में जो सुनने को दिखने को मिली, हो सकता, ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक भी क्वेश्चन ड्रॉप ना हुआ हो। 150 क्वेश्चन में तो मैं श्योर नहीं हूँ, मैं अपने आइडिया पे बोल रही हूँ, हो सकता है 5, 6, 4 क्वेश्चंस ड्रॉप हुए हो। अगर आप लोगों ने वो अटेम्प्ट किए, मैंने ड्रॉप क्वेश्चंस के बारे में भी एक पहले वीडियो बना के रखी, वहां से आप देख सकते हो एसबी लिटरेचर के जो चैनल पे और यूट्यूब सर्च बार पे चाहिए जाके एसबी लिटरेचर जो भी सर्च करें, एसबी लिटरेचर फ्रॉम एसबी लिटरेचर लिखिए, शायद आपको मेरी वीडियो दिखने को मिल जाए। तो ड्रॉप क्वेश्चंस मतलब आप लोगों ने अटेम्प्ट करके आए हो, अटेम्प्ट किए हो क्वेश्चंस को, एनटीए ने क्वेश्चन या फिर ऑप्शंस गलत सेट की हो और उन लोगों ने उसको ड्रॉप कर दी।
तो फिर वो मार्क्स आपको मिलेंगे अगर आपने अटेम्प्ट किया। अगर नहीं किए तो आपको वो नहीं मिलेंगे, वो आप लोगों के लिए बोनस मार्क्स बन जाते हैं कि हमने तो आंसर करके आए, उन लोगों ने गलती की तो मार्क्स तो उन्हें देना ही पड़ेगा, यही करते हैं। और मैंने वो 2 प्रोसेस भी बता दी थी ड्रॉप क्वेश्चंस के बारे में। तो मुझे ये बोलने कि मैं जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के वीडियो बनाई थी पहले, मैं उससे हटने वाली तो नहीं हूँ, मैं चेंज अब नहीं करने वाली हूँ। मुझे अभी भी ये लग रही है, आप वो वीडियो फिर से जाके देखिएगा, जरूरत है तो बोर्ड पे है। मैं यहाँ पे वर्बली आप लोगों को ऑरली बोलने जा रही हूँ कि यूर मतलब अनरिजर्व कैटेगरी शिफ्ट 1 58% फॉर ओनली नेट, माई एक्सपेक्टेशंस of same. I'm not going to change anything, okay, about this expected cutoff. Then shift 2 56% and JRF for shift 1 66 to 68% and shift 2 JRF 64 to 66%. EWS category only net 56 and shift 1, shift 2 54 and JRF 64% for EWS shift 1 and 62% for shift 2 for JRF. Then OVC 52 to 54% for shift 1 and 50 to 52% shift 2 and 61 for JRF shift 1 and 59 for shift 2 JRF. SC 49 to 50% shift 1, shift 2 47 to 48%, then JRF 58% shift 1 and shift 2 56%. SC category 10 ST category 47 to 48% shift 1 and 45 to 46 shift 2 56% for JRF shift 1 and 54 for JRF for shift 2 और अगर मैंने कुछ मिस की हो तो वो वाला वीडियो में जाइए, सर्च करके एक्सपेक्टेड कट ऑफ फ्रॉम एसपी लिटरेचर यूट्यूब सर्च बार पे लिखिए और देखिए, और बोर्ड पे है वहां से आप देख सकते हैं। और अदर्स कैटेगरी आप लोग यूट्यूब पे, गूगल पे या फिर कोई भी ऑफिशियल जो वेबसाइट्स है वहां पे जाके आप लोग देख सकते हैं। एनटीए के भी और अदर्स भी कभी कभी रहते हैं, गूगल में सर्च करके देखिए। मैं अपनी जो अपनी जो मतलब जो मैंने सोची थी मैं वहां से नहीं हटूंगी, मुझे चेंज करनी नहीं है। मुझे लग रही है कि इसके 1-2% कम 1-2% ज्यादा हो सकते हैं, इससे कम है। मैं एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि एग्जैक्ट किसी को नहीं पता। आप लोगों को पता है इस दुनिया में अगर कुछ फिक्स्ड है तो वो है चेंजेबल, चेंज इज फिक्स्ड, नथिंग इज फिक्स्ड इन दिस होल यूनिवर्स। सो मैं एक्सपेक्टेड बोल सकती हूँ, एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकती क्योंकि मैं तो रिजल्ट लाने वाली नहीं हूँ। तो फिर आप लोग जाइए और देख सकते हैं। और इंग्लिश में मैंने शुरू में बंगाली के साथ साथ थोड़ी बहुत बोल दी, और ये जो कट ऑफ के बारे में वो तो इंग्लिश में ही मैंने बोली, अलग से मैं इंग्लिश में नहीं बोलने जा रही हूँ। आज के वीडियो के जो थंबनेल रहते हैं कि कुछ डाउट क्लियरिंग एंड अगेन एक्सपेक्टेड कट ऑफ आफ्टर फाइनल आंसर की, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो। और एक बच्चों ने मुझे कॉमेंट की उसके लिए थैंक्स। मैं ये वीडियो आपको हेल्प करेगा बेटा, प्लीज देख लेना। और एक बच्चों ने भी कमेंट की, तो मैं आप लोगों को जब भी कमेंट पे रिप्लाई देती हूँ एक बात बताती हूँ कि ये सिर्फ हम अज्यूम करते हैं। हम अच्छे अपने लिए सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, ताकि हम स्टेबल रह सके, खुश रह सके। और अगर हमें लग रही है कि नहीं हो सकते, मतलब मार्क्स कुछ कम गए, तो फिर पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए। खुद को डिप्रेस्ड होना, एंजाइटी में, फियर में, कोई भी ऐसे फीलिंग्स को दिल में लाके खुद को एकदम अनहेल्दी एंड एकदम वीक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिंदगी है, एग्जाम है, सब कुछ ज़रूर है। अगर आपकी हेल्थ खराब हो गई, आप लेटे रहे बिस्तर पे, तब तो कुछ भी, ना आपका पढ़ाई, ना आपका काम, ना आपका खाना, कुछ भी आपको मन में नहीं लगेगा। अगर आप स्वस्थ हो तब आप जिंदगी में जीवित हो, स्वस्थ हो तब आप सब कुछ कर सकते हो, जो भी आपको मन चाहे, है ना। तो फिर मतलब जो भी चीज़ हम बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उसको ब्रेक करने में तो हम चुटकियों में कर सकते हैं ना। तो फिर अपने माइंड की जो स्टेबिलिटी, माइंड की जो पीस, वो हम क्यों किसी भी चीज़ों से ऐसे क्यों हम होते हैं, हम इंसान हैं, ये नेचुरल है, हम होते हैं प्रभावित, लेकिन क्यों हम, चाहे वो कोई एग्ज़ाम हो, चाहे कोई इंसान हो, क्यों हम अपनी लाइफ की जो पीस, अपनी लाइफ की जो थॉट, अपनी लाइफ की जो खुशियाँ दूसरों के हाथों में क्यों दें, है ना। लोग कहने को कहे, हमें तो अपनी लाइफ को स्टेबल रख के, माइंड को सेट रख के फिर अपने काम पे आगे जाना है ना। किसी के बारे में बुरा मत सोच के, किसी के बारे में खराब नहीं सोचना चाहिए, कुछ भी कभी किसी के लिए खराब प्रे नहीं करना चाहिए। अगर आपके हाथ में है तो हेल्प करिए लोगों को, नहीं है तो चुपचाप अपने लिए अच्छे काम करते जाइए, बस यही हम ह्यूमन बीइंग के लिए कर सकते हैं ना। तो फिर थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।
টেক কেয়ার, থ্যাংক ইউ অল अगेन, হ্যাপি দশরা, শুভ বিজয়া। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, देखते থাকুন एसबी लिटरेचर। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करूँ प्लीज, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा एसबी लिटरेचर को, एंड टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसबी लिटरेचर। थैंक यू।